Click here to subscribe our channel. Do not forget to press bell icon to get regular updates of free videos. This is chapter number 8, Slutsky equation. So far we have done chapter number 2 to chapter number 7. Chapter number 2 to chapter number 6 was basically the basic part, and the last chapter was a revealed preference. Now under application chapter, we can say this is the most important chapter. Based upon this Slutsky equation, there will be next chapter of buying and selling. This Slutsky equation is explaining that price effect has two components. One is substitution effect, other is income effect. So price effect has two parts. You have to calculate price effect, substitution effect and income effect for various types of preferences like well behaved or Cobb-Douglas or perfect complement, for perfect substitute, quasi-linear, maximum. So we have to calculate or rather separate substitution effect from income effect, and the combination of these two effects will be considered as price effect, and we have to do it numerically as well as graphically. So numerical or graphically both part आना है. So first of all the numerical aspect of it and then the graphical aspect of it. But first of all, what is the meaning of price effect, substitution effect and income effect? So start with this concept. Remember, whenever you say price effect, then price effect is simply defined as effect on change in quantity demanded due to change in price of a commodity keeping all other factors constant. तो प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. लाइक फॉर एग्जांपल, if I draw a budget constraint, remember any budget constraint is drawn on the basis of three information. I am writing here this original budget line. If I mark that original budget line as AB, then this budget line AB is based upon good 1 price P1, good 2 price P2 and income M. So the initial budget line AB is based upon three values P1, P2 and M. Information about P1, P2 and M will be given to you. Information P1, P2 और M का given होगा. Now question is, when price of a good changes, so price of good 1 can change or price of good 2 can change. बट जिस कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा आप उसी कमोडिटी के डिमांड को कैलकुलेट करोगे. अगर गुड 1 का चेंज हो रहा है तो गुड 1 का डिमांड निकालना है, और अगर गुड 2 का प्राइस चेंज हो रहा है तो गुड 2 का डिमांड कैलकुलेट करना है. तो प्राइस इफेक्ट, अगेन आई रिपीट, प्राइस इफेक्ट का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. सो इफ आई ड्रॉ ओरिजिनल ऑप्टिमल चॉइस, remember for this optimal choice a utility function will be given to you. So if a function is given to you like x1 into x2, then that is convex to origin. So optimal choice is determined by point of tangency. So this will be considered as your original demand x1. Now if I keep all other factors constant and just change price of good 1, तो P1 की वैल्यू डिफरेंट हो गई, P2 सेम है, इनकम सेम है. So if P1 is less as compared, P1 dash is less as compared to P2, then budget constraint will be flatter. As this budget constraint shifts, you will find another optimal choice, and at that optimal choice whatever is quantity that is being purchased, इसको मैंने यहाँ मार्क किया अभी x1 डबल डैश, इन बिटवीन अभी एक नंबर आना है. This change in quantity demanded of good 1 is due to change in price of that commodity keeping all other factors constant. So this change will be called as price effect.
यहाँ तक का जो कंपोनेंट होगा ये पूरा का पूरा जो चेंज होगा वो प्राइस इफेक्ट है। तो सिंपली इफ अ फंक्शन इज गिवन टू यू, P1 is given to you, P2 is given to you, income is given to you, then from that original line you will find that x1 value. आप उस ओरिजिनल बजट लाइन से x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू। ऑप्टिमल मतलब है ऑप्टिमल कैलकुलेट करना, जो आपने चॉइस के चैप्टर में और डिमांड के चैप्टर में कर रखा है। सो इफ एनी फंक्शन इज गिवन, प्राइसेस आर गिवन, यू कैन कैलकुलेट दिस बंडल। और ये लाइन मैंने अब फाइनल बजट लाइन बोला है। फाइनल बजट लाइन को अगर मार्क किया ए बी डैश, देन ऑन दिस लाइन यू कैन से दैट प्राइस इज P1 डैश, P2 और M। ऑन दैट बजट लाइन कैलकुलेट डिमांड फॉर गुड 1। दोबारा से आप ये ऑप्टिमल चॉइस की वैल्यू निकाल लीजिएगा। इन दोनों नंबर में जितने का डिफरेंस होगा, मतलब x1 की वैल्यू आएगी और x1 डैश की वैल्यू आएगी, इन दोनों नंबर में जितने का डिफरेंस है, that difference will be considered as price effect. So while calculating price effect, write here x1 double dash minus x1. ये component price का effect हो गया। But we have to separate that price effect into two parts, substitution and income effect. Substitution effect और income effect में separate करना है। अब separate करने का जो method follow किया जा रहा है, उस method को कहते हैं Stutsky equation. There are alternate approach as well, but वो चैप्टर के एंड में आएगा। Obviously the other approach is Hickson approach. So one approach that will be followed in this chapter throughout, that will be Stutsky approach. So what is the way in which Stutsky has separated substitution effect from the income? We have to explain that. So first of all, be clear, we have to explain Stutsky equation in that context. कुछ प्राइमरी सेंटेंसेस हैं, स्टार्ट के कंसेप्ट है, उसको एक जगह पहले लिख लेंगे। ये भी कंप्लीट नहीं है, ये जस्ट प्राइमरी भी डायग्राम है, इसमें हमने टोटल प्राइस इफेक्ट कैलकुलेट किया है। वी हैव टू सेपरेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फ्रॉम इनकम इफेक्ट। दैट मींस इस प्राइस इफेक्ट के दो कंपोनेंट होंगे। सो हाउ मच इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, हाउ मच इज ड्यू टू इनकम, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सर्टेन बेसिक पॉइंट्स, नोट कर लेंगे। Price effect is defined as, price effect is defined as change in quantity demanded. Price effect is defined as change in quantity demanded of a commodity. Change in quantity demanded of a commodity due to change in price of that commodity. Due to change in price of that commodity, keeping all other factors constant. Keeping all other factors constant. तो हमने सिर्फ गुड 1 का प्राइस चेंज किया है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो वट एवर बी द चेंज इन डिमांड, दैट चेंज इन डिमांड विल बी कॉल्ड एज प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस देन, when price of a good changes then, when price of a good changes then, there are two types of changes. When price of a good changes then, there are two types of changes. Number one, the rate at which we can exchange one good for another changes. The rate at which we can exchange one good for another changes. इस सेंटेंस का मतलब है the rate at which we can exchange one good for another. Rate of exchange मतलब P1 by P2 होता है, तो P1 upon P2 rate of exchange है। So whenever you price of any good, then the rate at which it can be converted into another good, that will change. So when you change the price of good 1, then this ratio changes, that means the rate of change has changed or the rate of exchange has changed. Second, the purchasing power of income changes. 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 ध्यान देना, whenever you will change price of good 1 or good 2,
first thing that will change is that the rate at which we exchange one good for the another, that will change. And second, when price of a good changes, consumers purchasing power will also change. For example, as price decreases, you can buy more with the same money income. So purchasing power of income will increase. अब ये दो चेंजेस एक साथ हो रहे हैं. रेट ऑफ चेंज की वजह से डिमांड का चेंज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा, और परचेजिंग पावर में चेंज की वजह से डिमांड का चेंज, इसे इनकम इफेक्ट कहते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ड्यू टू चेंज इन rate of exchange, and income effect will be due to change in that purchasing power. Now, how to separate these two? While determining substitution effect, you will keep income effect constant, and while determining income effect, I will keep substitution effect constant. But how to do it? To keep purchasing power constant, you will have to adjust income, and to keep price ratio constant, so that you can keep substitution effect constant, you will draw line in a parallel manner. So if I am drawing two parallel lines, on those two parallel line price ratio will remain same. So on two parallel line price ratio will remain same, then there will be no substitution effect, there will be only income effect. Like if I say roughly, if one line is this, another line is this, then on these two lines the price ratio is same, but only the purchasing power is different. And when you draw one line and another line crossing each other, then on these two lines price ratio is different, but purchasing power of this bundle is same, because that bundle is common on both the line. तो इसको सेपरेट करने का जो मेथड फॉलो किया जा रहा है वो मेथड है स्टट्स की इक्वेशन. नाउ हाउ टू सेपरेट इट? फॉर दैट पर्पस राइट नेक्स्ट पैराग्राफ, जस्ट ब्रीफली कुछ पॉइंट्स पहले देंगे सो दैट वो कैलकुलेट कैसे करना सर्कल में इजी रहेगा. राइट डाउन टू सेपरेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फ्रॉम इनकम इफेक्ट. To separate substitution effect from income effect, to separate substitution effect from income effect, first of all we pivot budget line, pivot मतलब rotation, first of all we pivot budget line around originally demanded bundle, pivot budget line around originally demanded bundle, originally demanded bundle ये होगा. First of all pivot budget line around originally demanded bundle, and then shift budget line, and then shift budget line parallel, and then shift budget line parallel to new demanded bundle, shift budget line parallel to new demanded bundle. By doing this we separate substitution effect from income effect. By doing this we separate substitution effect from income effect. By doing this we separate substitution effect from income effect. अब यहाँ पे जरा फोकस करना. ओरिजिनल बंडल पहले कैलकुलेट करना है. इस ओरिजिनल बंडल को कैलकुलेट करने के बाद क्या जरा फर्स्ट ऑफ ऑल पिवट द लाइन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पिवट द लाइन अराउंड दिस बंडल, and then that line will be shifted. अब इसको करते कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ in a on separate page. अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, जिससे आप फोकस कीजिएगा. You have drawn one budget line. Information about that line will be given to you. So original bundle or other original budget line, P1, P2 and M, that is given to you, and you calculated that first optimal choice, and that optimal choice is X1. So based upon that you calculated the value of X1 first of all. Now if I say that price of good 1 reduces, then it will be causing price effect,
and that price effect will have two parts, substitution effect and income effect. This left side is explaining only substitution effect, on right side I will use it for income effect, but वो separate नहीं बनाना पेपर में, आपको combine करके क्लास में डायग्राम ड्रॉ कर देंगे. Now ड्रॉ करने का तरीका कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिनल बजट लाइन है उस लाइन को पहले आप पिवट करोगे, बट लाइन कैन बी पिवटेड इन टू वेज. इट मे बी अ फ्लैटर लाइन और इट मे बी अ स्टीपर लाइन. दैट विल डिपेंड अपॉन whether price has increased or whether price has reduced. So when price reduces, you will pivot the line so that pivoted line is flatter. ओरिजिनल लाइन का स्लोप P1 by P2 हो गया, नई वाली लाइन का स्लोप P1 डैश by P2 हो गया. तो जब हमने लाइन को पिवट किया है, और इसे ओरिजिनल बंडल से क्यों पिवट कर रहे हैं? ओरिजिनल बंडल से पिवट करते हैं सो दैट परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, व्हिच मींस दिस ओरिजिनल बंडल इज अफोर्डेबल इन बोथ कंडीशन. व्हेन प्राइस वाज P1 then also it was affordable, when price is P1 dash then also it is affordable. अब आप क्वेश्चन करोगे कि हाउ यू विल कैलकुलेट इनकम ऑन दैट लाइन, बट पहले आप ये बताओ ऑन दिस न्यू बजट लाइन वेयर विल बी द न्यू ऑप्टिमल चॉइस. रिवील प्रेफरेंस का चैप्टर आपने कवर कर रखा है. रिवील प्रेफरेंस कहता है कि अगर कोई बंडल अर्लियर अफोर्डेबल था बट कंज्यूमर ने उसको बाय नहीं किया हुआ है, तो कंज्यूमर ने अपने प्रेफरेंस को रिवील कर दिया है. और इफ कंज्यूमर हैज ऑलरेडी रिवील्ड हिज प्रेफरेंस देन कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स दैट he should not be contradicting his own behavior. तो इस नए बजट लाइन पे कौन कौन से बंडल अफोर्डेबल होंगे, इसके आप दो सेगमेंट कर सकते हो. वन which is lying to the or other inside the original line, other which is outside. तो पहले वाले जितने भी सेगमेंट थे, जब कंज्यूमर ने E1 को चूज किया था, then any bundle which was on this segment was affordable but not purchased. That means preference has already been revealed. तो नया ऑप्टिमल चॉइस अब इधर कहीं हो सकता है. It cannot be any point on this segment, but it can be any point to the right of it. So if I draw it A2 and I draw optimal choice here, then demand for good one say mark कर रहा हूँ X1 dash. This change in demand for good one will be called substitution effect. But to calculate this new value, again you require three information: P1, P2, M. इस डॉटेड लाइन को मैं कह रहा हूं इट इज पिवटेड बजट लाइन, एंड ऑन दैट पिवटेड बजट लाइन इट इज P1 डैश P2. और रिमेंबर M की वैल्यू डिफरेंट है. M की वैल्यू डिफरेंट है बिकॉज मैंने कहा परचेजिंग पावर सेम है बट इनकम सेम नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू हैव 100 रुपीज एंड प्राइस ऑफ अ गुड इज 10 रुपीज, देन यू कैन बाय 10 यूनिट ऑफ इट. But if price of the same good reduces from 10 to 5, then your purchasing power of that 100 rupees increases. अब इसको मैं एग्जांपल में यहाँ लिख दे रहा हूँ. If I say income is 100 and price of good one is 10 rupees, then how much is purchasing power? You can buy 10 unit. When I say income is 50 but price is 5, then how much is purchasing power? Again it is 10 unit. So purchasing power of 100 rupees at a price of 10 and purchasing power of 50 rupees at a price of 5 is same. Purchasing power in terms of quantity होता है. तो 100 रुपए का purchasing power 10 रुपीज के प्राइस पे और 50 रुपीज का purchasing power 5 रुपीज के प्राइस पे सेम है, बट ये नंबर सेम नहीं है, ये 50 और ये 100 है. So we have to keep purchasing power same, not money income same. So that brings to the next question, how to calculate this M dash. इस M dash को आप फाइंड कैसे करोगे, ये नंबर आपको खुद से कैलकुलेट करना है. और इसे कैलकुलेट करने का मेथड में यहाँ लिख रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट दैट नंबर. सिंपली देखिएगा, जब हमने ओरिजिनल बजट लाइन बना रखा है, तो फॉर ओरिजिनल बजट लाइन आई कैन से P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M. उस ओरिजिनल लाइन पे P1 डैश P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M है. जब लाइन पिवट हुई है तो पिवटेड लाइन पे P1 डैश X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M डैश.
जब लाइन पिवट हुआ है तो रिमेंबर उस पे P1 की वैल्यू डिफरेंट हो गई है, बट P1 की वैल्यू अगर डिफरेंट हो गई तो पर्सन का परचेजिंग पावर भी डिफरेंट हो गया, बट वी हैव टू कीप परचेजिंग पावर कांस्टेंट. सो टू कीप परचेजिंग पावर कांस्टेंट यू विल एडजस्ट इनकम. और इन दोनों ही इक्वेशन में हमने कॉमन बंडल ले रखा है. कॉमन बंडल x1 x2 यहां भी है, कॉमन बंडल x1 x2 यहां भी है. कॉमन बंडल का मतलब है दोनों केस में वो बंडल आपके लिए अफोर्डेबल है, और अफोर्डेबल का मतलब है यू हैव केप्ट योर परचेजिंग पावर कांस्टेंट. तो ये दो इक्वेशन आप रजिस्टर में सिर्फ कॉपी कर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट साइड रह जाएगा m डैश माइनस m और लेफ्ट साइड x1 कॉमन निकल जाएगा. ब्रैकेट का नंबर हो जाएगा p1 डैश माइनस p1. तो इसे अब आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, चेंज इन p1 इनटू x1 इज इक्वल टू चेंज इन m. और इस फॉर्मूले को अब आप याद कर लो. चेंज इन प्राइस इनटू x1, और रिमेंबर x1 कौन सी क्वांटिटी है, x1 इज योर ओरिजिनल क्वांटिटी, जो हमने ओरिजिनली बाई कर रखा है वो x1 की वैल्यू है. तो चेंज इन p1 इनटू x1 करने के बाद जो चेंज इन इनकम आएगा, दैट मच एडजस्टमेंट ऑफ इनकम इज नीडेड. एग्जांपल के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, सपोज ओरिजिनली मैंने बंडल बाय कर रखा है 10 यूनिट and price of a good has reduced from 5 rupees to 4 rupees. तो अगर ओरिजिनली मैंने बंडल बाय कर रखा है x1 और प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम 5 to 4, देन हाउ मच एडजस्टमेंट ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड. एडजस्टमेंट ऑफ इनकम मतलब डेल्टा m. तो हाउ मच एडजस्टमेंट ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड. अब आप इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली क्या करोगे, चेंज इन प्राइस जब कभी निकालना हो, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस करना है. तो न्यू प्राइस इज 4, ओल्ड प्राइस वाज 5, सो इट इज ऑलवेज 4 minus 5 into x1 which is 10. So how much adjustment of income is required? 4 minus 5 minus 1 into 10 minus 10. तो अगर गुड 1 का प्राइस 5 to 4 हो गया, मतलब 1 रुपीज से रिड्यूस हो गया, and you are already purchasing 10 unit of it, so even when your money income reduces by 10 rupees, your purchasing power still remains same. तो जो भी डेल्टा m आएगा उस डेल्टा m को अगर आप ओरिजिनल इनकम में ऐड कर देंगे तो ये m डैश की नई वैल्यू आ जाएगी. तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है. हाउ टू कैलकुलेट दैट m डैश. टू कैलकुलेट दैट m डैश आपको क्या निकालना है, डेल्टा m. एंड हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा m, इट इज डेल्टा p1 into x1. जो डेल्टा m की वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल इनकम में ऐड कर दीजिएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप उसे ऐड कर देंगे तो m डैश की नई वैल्यू आ जाएगी. एंड देन यूज दैट वैल्यू टू कैलकुलेट दिस पॉइंट. फ्रॉम दैट पॉइंट यू विल कैलकुलेट x1 डैश, एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू विल बी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. साइन का इंपॉर्टेंस है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू कीजिएगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डज नॉट मैटर. पॉजिटिव भी आ सकता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इट कैन बी नेगेटिव एज वेल. तो फर्स्ट पार्ट एक्चुअल में याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन हो गया फॉर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बट दिस नॉट कंप्लीट, दिस वन पार्ट ऑफ इट. एंड व्हाट विल बी द अदर पार्ट इन दिस सेकंड डायग्राम व्हाट आई एम ड्राइंग इज दिस डॉटेड लाइन. यहां जो डॉटेड लाइन बना रखा था वो डॉटेड लाइन यहां बना रहा हूं, एंड पैरेलल टू दैट आई एम ड्राइंग नेक्स्ट लाइन. But if two lines are parallel, then price ratio will remain same. And when price ratio is same, there will be no substitution effect. There will be only income effect, because income on these two lines are different. So on dotted line, ये A2 का point है, x1 dash की value है. As you move from this dotted line to bold line, your income increases. As you move from this dotted line to the bold line, income of consumer increases, and with an increase in income, consumer may consume more of a good or consumer may consume less of a good. It all depend upon whether it is a normal good or whether it is an inferior good.
इनकम के इंक्रीज होने पे कंज्यूमर में बाई मोर और कंज्यूमर में बाई लेस। अब वो ज्यादा बाई करेगा या कम बाई करता है वो डिपेंड करता है कि गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है। सो इफ आई कंसीडर बोथ एज नॉर्मल, then demand for good 1 will increase as well as demand for good 2 will increase. गुड अगर दोनों ही नॉर्मल होगा तो आप थर्ड पॉइंट डायगोनली बना लेंगे। अगर ये गुड 1 इंफीरियर है तो इस x1 की वैल्यू घट जाएगी, तो ये पॉइंट E3 लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। अगर गुड 2 इंफीरियर है तो फिर ये पॉइंट इधर डाउनवर्ड बना लेंगे, जिससे x1 की वैल्यू बढ़ जाएगी और x2 की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो वो पॉइंट अभी इस ग्राफ के टर्म में जब करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर E3 है और ये लास्ट का नंबर हो गया x1 डबल डैश। दिस चेंज इन डिमांड विल बी इनकम इफेक्ट। बट अभी मैंने एक्चुअल में ये दो डायग्राम सेपरेट कर दिया। दिस इज ओनली फॉर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड दिस इज ओनली फॉर, दैट वाज ओनली फॉर इनकम इफेक्ट। इफ यू सुपर इम्पोज that diagram on this diagram, then it will become the final diagram. तो how to superimpose this on this, ये दो डायग्राम अलग अलग नहीं बनाने, मुझे एक ही में ड्रॉ करना है। तो रिमेंबर आई हैव ड्रॉन ओरिजिनल लाइन AB, then line has been pivoted and that pivoted line has been shifted. So if I use this diagram for that purpose, that pivoted line has been shifted, and on that shifted line we have drawn third point E3. So this is your complete description where substitution effect plus income effect is price effect. यहाँ तक substitution होगा, इसके बाद का जो effect हो गया income है, और जो complete change है that change will be considered as price effect. मैं एक बार और इस डायग्राम को कंबाइन करके ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टेप के अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। So I am redrawing this again by writing these numbers. एक बार दोबारा से एक बार समझ लेंगे इसे। डायग्राम स्लाइडली थोड़ा बड़ा रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओरिजिनल लाइन है, इस लाइन के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा वो आपको गिवन होगा। दैट मीन्स यू नो P1, यू नो P2 एंड यू नो इनकम। ये तीनों वैल्यूज गिवन है on line AB, and that line AB can be interpreted as original budget line equation. On that bundle, first of all you will calculate the original quantity demanded. So first of all calculate that x1. यहां से हमने x1 की वैल्यू निकाल ली है पहली। अगले केस में आपको लाइन को पिवट करना है, पिवटेड लाइन, बट उसका ध्यान रखना लाइन को पिवट करते समय फ्लैट बनाना या स्टीप बनाव करना वो डिपेंड करता है whether price is increasing or decreasing. So if I say price reduces, then you will pivot the line around this point. इस डॉटेड लाइन को कह रहा हूं पिवटेड लाइन, और इसके ऊपर वैल्यूज क्या होंगी P1 डैश, P2 और M डैश। एंड हाउ टू फाइंड दैट M डैश, ओरिजिनल इनकम में चेंज इन इनकम ऐड करना है। हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस को मल्टीप्लाई करना है x1 से। एंड व्हाट इज x1, ये ओरिजिनल बंडल है। जो ओरिजिनल बंडल आपने फाइंड किया सबसे पहले वो चेंज इन, वो x1 हो जाएगा। चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, दैट प्राइस विल बी गिवन टू यू। इस पिवटेड लाइन पे यू विल कैलकुलेट x1 डैश बंडल, which is graphically here. First point is E1, next point is E2. From that point you calculate next bundle. This change in demand is called substitution effect. And then you draw the final budget line. Sometimes it will be also called shifted budget line. On that shifted budget line, शिफ्ट का मतलब ये हो गया उस डॉटेड लाइन के पैरेलल पैरेलल लाइन बन रही है। शिफ्टेड बजट लाइन इज दिस AB डैश, एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑन दैट, इट विल बी P1 डैश, P2 और M। इस फाइनल बजट लाइन पे थर्ड बंडल कैलकुलेट कर लेंगे E3,
demand of good one is x1 double dash, and this change in demand will be income effect, and this total change will be called as price effect. Remember जो ओरिजिनल लाइन बनाई है उस पे भी इनकम एम लिखा है फर्स्ट, और जो लास्ट वाली लाइन बन रही है उस पे भी इनकम एम लिख रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ और चेंज नहीं किया. इफ यू ड्रॉ वन लाइन, इफ यू ड्रॉ अनदर लाइन, इन दोनों लाइन पे बजट लाइन का ये कॉर्नर वैल्यू क्या होता है, m अपॉन P2 है. तो आपने ना तो P2 को चेंज किया और ना ही इनकम को चेंज किया. चेंजिंग ओनली प्राइस ऑफ गुड वन, तो सिर्फ गुड वन का प्राइस चेंज हो रहा है. वो सेपरेट करने के लिए डॉटेड लाइन बनाई जा रही है. रिमेंबर इस लास्ट बंडल को लिए x1 डबल डैश, और एक जगह यहां नोट कर लेना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट करते समय x1 डैश माइनस x1 ये नंबर लिखेंगे. इनकम इफेक्ट कैलकुलेट करते समय x1 डबल डैश माइनस x1 डैश ये नंबर लिखेगा. और प्राइस इफेक्ट फाइंड करते समय लास्ट बंडल माइनस फर्स्ट बंडल ये नंबर लिखेंगे. इन शॉर्ट सिर्फ करना कि आपको तीन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, वन फॉर ओरिजिनल बंडल, देन फॉर पिवटेड बंडल एंड देन फॉर शिफ्टेड बंडल. पहला ओरिजिनल के लिए, फिर पिवटेड के लिए और फिर शिफ्टेड के लिए. ओरिजिनल पे कौन कौन से वैल्यूज हैं रिपीट करके बता देंगे. ओरिजिनल पे वैल्यूज होगा P1, P2 और M. पिवटेड पे P1 डैश, P2 और M डैश, और फाइनल पे P1 डैश, P2 और M. रिपीट, ओरिजिनल बंडल पे P1, P2, M, पिवटेड बजट लाइन पे P1 डैश, P2, M डैश, और फाइनल पे P1 डैश, P2 और M. सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि M डैश कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल इनकम प्लस डेल्टा M, and how to find delta M, it is change in P1 into X1 and that X1 is originally demanded bundle. ये कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए, और आपको ऑप्टिमल चॉइस और डिमांड कैलकुलेट करना आना चाहिए फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस. दिस इज नॉन फॉर वेल बिहेव्ड. वेल बिहेव्ड कैन बी कंसीडर्ड एज कॉप-डगलस आल्सो. और जो कॉन्वेक्स फंक्शन है वो क्वासी लीनियर भी है. तो कॉप-डगलस के लिए, क्वासी लीनियर के लिए और वेल बिहेव के लिए कैलकुलेट करते समय आपको ये स्टेप फॉलो कर लेना है. अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल हाउ टू अप्लाई. सो न्यूमेरिकल नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे आराम से. न्यूमेरिकल नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम आप रीडिंग में जो चैप्टर के अंदर मेंशन्ड है वो कर लेंगे. जो फर्स्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी गिवन है इन बुक. एग्जाम्पल 1, लेट डिमांड फंक्शन बी, डिमांड का फंक्शन गिवन है, लेट डिमांड फंक्शन बी x1 इक्वल टू 10 प्लस m अपॉन 10 P1. डिमांड का फंक्शन है m, x1 इज इक्वल टू 10 प्लस m अपॉन 10 P1. कैलकुलेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट and price effect. Substitution effect, income effect and price effect. If price of good one reduces from 3 to 2, मतलब P1 की वैल्यू 3 हो गई, P1 डैश की वैल्यू 2 हो गई, and consumers original income is 120, कंज्यूमर का ओरिजिनल इनकम 120 है. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. डिमांड का फंक्शन दिया गया है, आपसे गुड वन की क्वांटिटी डिमांडेड में कितने का चेंज आएगा वो बताना है. ड्यू टू व्हेन प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम 3 to 2 एंड देन सेपरेट दैट डिमांड चेंज इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप ऐसे लिखते जाएंगे तो ज्यादा बेटर है. पहले लिख दीजिए ओरिजिनल बजट लाइन. तो जरा पॉइंट रिलेट करके बताओ, मैंने स्टार्ट में क्या बोला. ओरिजिनल बजट लाइन पे क्या लिखना है, P1, P2 और M. तो P2 की वैल्यू गिवन नहीं है और जरूरत भी नहीं है यहाँ पे. तो P1 की वैल्यू हो गई 3,
P2 given any और इनकम है 120, therefore X1 is equal to, अब ये प्राइस और इनकम यहाँ पुट कर देना डिमांड निकालने के लिए, 10 प्लस 120 बाई 10 इंटू 3, ठीक है। तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई 14, पहला काम ये किया। अब अगले स्टेप पे मुझे पिवटेड लाइन लिखना है, बट पिवटेड लाइन पे P1 डैश होता है वो मालूम है, P2 है उसकी जरूरत नहीं है, और M डैश है तो ये वैल्यू तो M गिवन है, अब मुझे M डैश कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो स्टेप था वो डेल्टा M which was delta P1 into X1 करना है, and what is delta P1? New price, that is 2 minus 3 into X1, X1 is 14, so minus 1 into 14 minus 14, so M dash is original income plus that delta M, so 120 minus 14 106, M dash की वैल्यू ये होगी। अब M dash की वैल्यू ये करने के बाद आप पिवटेड बजट लाइन पे क्वांटिटी कितनी है वो निकाल लेंगे। सो ऑन पिवटेड लाइन व्हाट यू हैव टू राइट, P1 डैश, P2 और M डैश, तो P1 डैश इज 2 एंड M डैश इज 106। अब X1 की वैल्यू अपने कन्वीनियंस के लिए आप इसको X1 डैश कर लो, अब वो नेक्स्ट नंबर है, डिफरेंट नंबर है, बट फंक्शन तो वही यूज करना है जो गिवन है। सो इट इज 10 प्लस M की जगह 106 अपॉन 10 इंटू 2, इस फंक्शन में मैंने वैल्यू पुट कर दिया 2 और 106 का, और यहां से X1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इट कम्स आउट टू बी 15.3। सो पिवटेड पे 15.3 है, ओरिजिनल पे 14 है, therefore how much is substitution effect? substitution effect क्या बोला गया था, X1 डैश माइनस X1 करना है, तो 15.3 minus 14 1.3, first effect has been separated, and on final line पे P1 dash which is 2 और इनकम ओरिजिनल रहेगा 120, तो लास्ट का बंडल हो जाएगा 10 प्लस 120 बाई 10 into 2 and this is 16, this quantity minus this quantity, this will be your income effect, 16 minus 15.3, that is 0.7, so income effect is 0.7, if you add these two you get price effect of 2, तो substitution effect और income effect add कर देंगे तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो प्राइस इफेक्ट आ जाएगा which is 2 here। अब इसको, ये बहुत एलिमेंट्री फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसमें डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में डिमांड फंक्शन गिवन होगा, उसकी जगह आपको यूटिलिटी का फंक्शन देंगे, और फ्रॉम दैट यूटिलिटी फंक्शन यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट डिमांड फंक्शन and then calculate original bundle, then calculate pivoted bundle and then calculate the final bundle। अब एक सेकंड प्रॉब्लम कर लीजिएगा, अगर फंक्शन गिवन हो और वहां पे डिमांड फंक्शन डिराइव करना है तो न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2, let utility function be, let utility function be, utility का ये फंक्शन गिवन है मिनिमम ऑफ x1, x2, यूटिलिटी का ये फंक्शन दिया गया है। अब फ्रॉम दैट यूटिलिटी फंक्शन आपको डिमांड फंक्शन निकालना होगा और फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट substitution effect, income effect and price effect, calculate substitution effect, income effect and price effect if price of good one, if price of good one increases from 10 to 15, price of good one increases from 10 to 15, keeping money income constant at 500 and price of good 2 constant at 10,
रिमेंबर जिस गुड का प्राइस चेंज होता है मुझे उसी गुड का डिमांड निकालना है. प्राइस ओनली वन गुड का चेंज हो रहा है, गुड 1 का फ्रॉम 10 to 15. प्राइस ऑफ गुड 2 इज सेम एंड इनकम इज आल्सो हेल्ड कांस्टेंट. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. पहले तो आप ये बताओ फ्रॉम दिस फंक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में गुड्स आर ऑलवेज कंज्यूम्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. सो व्हाट इज द प्रोपोर्शन हियर? ये बेसिक क्वेश्चन हो गया. सिंपली मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है गुड 1 एंड गुड 2 आर यूज्ड इन द रेशियो 1:1, which means x1 is equal to x2. So if you write a budget line, it is P1 x1 plus P2 x1 is equal to m. मतलब आपने x2 की जगह भी x1 ले लिया है, x1 x2 सेम होना है. So it is P1 x1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में टर्म हो गया P1 plus P2 is equal to m. Therefore x1 is equal to m upon P1 plus P2. ये अब मेरा डिमांड फंक्शन हो गया. अब इस डिमांड फंक्शन को यूज करते हुए आप ओरिजिनल बजट लाइन के वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर पिवट रेट का निकालिएगा और फिर फाइनल का. स्टेप वही करना है, हर क्वेश्चन में काम करना है. पहले मुझे डिमांड फंक्शन चाहिए, उसके बाद ओरिजिनल बंडल, फिर पिवटेड बंडल और फिर फाइनल बंडल. सो फॉर ओरिजिनल बंडल वैल्यूज क्या लिखते हैं? P1, P2 और M. P1 10, P2 10, इनकम 500. सो X1 is 500 upon 10 plus 10. 500 by 20. So it is original bundle is 25. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? पिवटेड, और पिवटेड पे आपको m डैश चाहिए, और m डैश के लिए मुझे चेंज इन इनकम निकालना है. फॉर्मूला चेंज इन P1 into x1 and how much is change in price? New price 15 minus old price. 15 minus 10 and how much is x1? 25. So it is 5 into 25, 125. So what is m dash now? M dash हो जाएगा ओरिजिनल इनकम प्लस डेल्टा m. So that is 500 plus 125, 625. ये m dash की वैल्यू होगी. पिवटेड बजट लाइन, वहां पे क्या लिखना है? पिवटेड बजट लाइन पे आप लिखते हो P1 डैश 15, P2 10 और m डैश की वैल्यू 625. 15, 10, 625. So what is new number now? x1 डैश. फंक्शन वही यूज करते जाना है, यहाँ पे इनकम और प्राइस चेंज होता जाएगा बस. 625 अपॉन 15 प्लस 10. So again it is 25. अब आप ये बताओ, ओरिजिनल बंडल वाज 25, पिवटेड पे भी 25 है, मतलब लाइन को पिवट करने पे कोई चेंज नहीं हुआ. नो चेंज का मतलब है substitution effect is now zero and it is logical. When goods are complement you can't substitute. तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का substitution effect हमेशा जीरो आएगा, बट आपको उसे कैलकुलेट करके शो करना प्रेजेंटेशन में. ऑब्जेक्टिव आंसर में तो आपको मालूम है, since goods are complement I can't substitute. So substitution effect is always zero for complement goods. तो substitution effect 25 minus 25 हो गया. और लास्ट बंडल, लास्ट इज फाइनल बजट लाइन. ऑन दैट बजट लाइन व्हाट आर द वैल्यूज? फाइनल पे क्या लिखते थे? P1 डैश, P2 और M. तो P1 डैश इज 15, P2 इज 10 एंड M इज 500. अब इस फाइनल बजट लाइन से हमने दोबारा x1 डबल डैश निकाला है. It is 500 by 15 plus 10, 500 by 25, so that is 20. So how much is income effect? 20 minus 25. तो यह आंसर लिख देंगे. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0, इनकम इफेक्ट हो जाएगा ये नंबर 20 minus 25. So 20 minus 25 is minus 5, and price effect is sum of these two, which is minus 5. So this is your answer according to Stutz की equation. पूरे चैप्टर में एक्चुअल में क्या हो रहा है? इन each and every chapter, in each and every question you have to calculate 3 optimal choice. One original, then
पिवटेड एंड देन फाइनल। ओरिजिनल निकालना है, पिवटेड निकालना है और फाइनल कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल पे P1 P2 और M, पिवटेड पे P1 डैश P2 और M डैश। जैसे उस M डैश को कैलकुलेट करने में कोई गलती नहीं करना है। M डैश कैलकुलेट करते समय यू हैव टू add delta m in that original m, and how to find delta m? It is delta p1 into x1, and what is delta p1? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। अगर कहीं भी मिस्टेक अगर प्लस माइनस का तो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो सब स्टड्स के इक्वेशन में यू हैव टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस। तो एक क्वेश्चन बेसिकली वेल बिहेव का हो गया, कॉब डगलस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए, वैसे सब्स्टिट्यूट के लिए भी होगा। बट सब्स्टिट्यूट में ऑप्टिमल चॉइस कौन सा पॉइंट होता है? सब्स्टिट्यूट में ऑप्टिमल चॉइस होगा जहां पे इफ MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो ओनली गुड 1, MRS लेस देन प्राइस रेशियो ओनली गुड 2। तो इनफैक्ट जो बेसिक इसलिए चैप्टर नंबर 2 to 6 को बेसिक कहा गया क्योंकि वो चैप्टर आगे के हर चैप्टर में यहाँ अप्लाई करते जाना है। तो आज के इस क्लास में हमने सिर्फ 2 फंक्शन किया एक्चुअल में, ग्राफिकली सेपरेट किया जो आइडिया है, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए सॉल्व कर रखा। सिमिलरली अगर आप उसको अप्लाई करते जाओगे तो सब्स्टिट्यूट के लिए भी वैसे बन जाएगा, क्वासी लीनियर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और किसी दूसरे फंक्शन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग ऑप्टिमल चॉइस और डिमांड। वन डिमांड on the basis of P1 P2 M, next demand on the basis of P1 dash P2 M dash, and final demand on the basis of P1 dash P2 और M। ठीक है, तो यहां तक आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। वर्कबुक में स्टार्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो यहां से बन जाएंगे। इस कंसेप्ट के बेसिस पे स्टार्ट के जो 4-5 क्वेश्चन, स्टार्ट के जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वो ट्राई कर सकते हैं। वो फिल्टर्ड होकर के ऑलरेडी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। तो बुकलेट में वो टॉपिक के अकॉर्डिंगली वो सेपरेटेड है। तो पहले आप उस बुकलेट के क्वेश्चन मतलब वर्कबुक के क्वेश्चन करो और जो पास्ट पेपर में आ रखा है। बट रिमेंबर स्टड्स की इक्वेशन ये दोबारा आपको करना है इन नेक्स्ट चैप्टर। बट इन दैट नेक्स्ट चैप्टर प्राइस इफेक्ट विल हैव 3 कंपोनेंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और एंडाउमेंट इनकम इफेक्ट। एंडाउमेंट का कंसेप्ट अभी इस चैप्टर में नहीं है, तो यही कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में फॉलो होगा। बट वहां पे 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, तो यहां तक तो सेम ही चलना है, उसमें एक पॉइंट बस एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी ये चैप्टर नंबर 8 ही कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट क्लास में। उसमें फर्दर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे वो आ जाएंगे, और जितने भी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, मतलब हाउ टू सेपरेट इट ग्राफिकली फॉर वेल बिहेव्ड, फॉर कॉब डगलस, फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। तो आज की क्लास यहाँ तक रहेगी। कंटिन्यूटी जो नेक्स्ट क्लास होगी सर्च के इक्वेशन में, उसमें रिमेनिंग फंक्शन होंगे वो कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? थैंक यू।